آج ہم بنزین کی اسٹیبلٹی اور اس کی جو ریزوننس انرجی ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر مالیکولر آربیٹل تھیوری کی بنیاد پہ بنزین کا اسٹرکچر ایکسپلین کریں گے۔ تو لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ریزوننس کی بات کی تھی، ریزوننس انرجی۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے گا یہاں پہ ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے سائیکلو ہیگزین، یعنی اس میں ایک ڈبل بانڈ موجود ہے۔ جب اس کی ہائیڈروجنیشن کی جائے، مطلب جب یہ ہائیڈروجن کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو یہ پائی بانڈ ٹوٹ جائے گا اور ہائیڈروجن کا ایک ایٹم یہاں پر ایک ایٹم یہاں پر ایڈ ہو جائے گا، اور اس دوران 120 کلو جاؤل انرجی پر مول اتنی انرجی ریلیز ہوگی اور کمپاؤنڈ بن جائے گا سائیکلو ہیگزین۔ سائیکلو ہیگزین کی ہائیڈروجنیشن ہوئی، 120 کلو جاؤل پر مول انرجی خارج ہوئی اور سائیکلو ہیگزین بنا۔ یاد رکھیے گا کہ سائیکلو ہیگزین کمپاؤنڈ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، یہ موجود ہے، اور یہ جو ویلیو ہے تو یہ ایکسپیریمنٹل ویلیو ہے۔ اب ہم ایک اور کمپاؤنڈ لے لیتے ہیں، سائیکلو ہیگزا 13 ڈائی این، یا آپ اس 13 کو آگے لا سکتے ہیں، پھر یہ ہوگا 13 سائیکلو ہیگزا ڈائی این۔ اب اس میں دو پائی بانڈز ہیں، ایک یہ والا ایک یہ۔ کیوں کہتے ہیں 13؟ کہ اگر آپ ادھر سے نمبرنگ کریں تو 1 2 3 4 اس طرح، تو 1 پہ اور 3 پہ ڈبل بانڈ موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلو ہیگزا 13 ڈائی این۔ تو جب اس میں ایک پائی بانڈ ٹوٹا تو اس میں دو پائی بانڈ ٹوٹیں گے، وہاں پہ ایک مالیکیول ایڈ ہوا تو یہاں پہ دو مالیکیول ایڈ ہوں گے، تو لہٰذا اس کے مقابلے میں ڈبل انرجی خارج ہوگی، ڈبل انرجی۔ یہ 120 ہے تو یہ ہوگی 240، اور یہ 232 ہے، یعنی 240 سے ذرا کم ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹل ویلیو ہے، یہ کمپاؤنڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اتنی انرجی ریلیز کر کے کنورٹ ہوتا ہے سائیکلو ہیگزین میں۔ اب ہم ایک ایسے کمپاؤنڈ کی بات کر لیں جو ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ بنزین ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے، تو یہ ہائپوتھیٹیکل کمپاؤنڈ ہے، فرضی ایک کمپاؤنڈ ہم نے لیا، سائیکلو ہیگزا 135 ٹرائی این، یا 135 سائیکلو ہیگزا ٹرائی این۔ تو جب اس میں تین پائی بانڈز ہیں تو تین مالیکیول ہائیڈروجن کے ایڈ ہوں گے، تین پائی بانڈ ٹوٹیں گے، تین مالیکیول یعنی 6 ایٹمز ہائیڈروجن کے ایڈ ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں 3 ٹائمز زیادہ، یعنی 120 ملٹیپلائڈ بائی 3 تو 360 کلو جاؤل پر مول انرجی خارج ہوگی۔ اب یہ کمپاؤنڈ تو ہے نہیں، تو یہ انرجی کیا ہے؟ یہ کیلکولیٹڈ ہے جناب، اس کو دیکھ کے ہم نے یہ کیلکولیٹ کی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں یہ بنزین ہے تو چلیے لے لیتے ہیں بنزین لیبارٹری میں، بنزین ہم لے لیتے ہیں لیبارٹری میں، اور 1 مول آف بنزین کے ساتھ 3 مول آف ہائیڈروجن ایڈ ہوتے ہیں، ادھر بھی ایڈ ہوئے، بنزین میں بھی 3 ایڈ ہوتے ہیں، 3 مولز آف ہائیڈروجن، تو بنزین اتنی انرجی خارج کرتا ہے جو کہ اس انرجی کے مقابلے میں بہت کم ہے، یہ ہے 360 کلو جاؤل، یہ ہے 208، ایون کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی کم ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کنٹریبیوٹر ہے، ایکچوئل بنزین یہ ہے، اور اب یہ کلوزسٹ کنٹریبیوٹر جو ہے اور ایکچوئل بنزین کی انرجی میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہے 152 کلو جاؤل۔ اس انرجی کو کہا جاتا ہے ریزوننس انرجی، یعنی یہ کمپاؤنڈ بنزین نہیں ہے، یہ اس کا کلوزسٹ کنٹریبیوٹر ہے۔ حقیقی بنزین یہ ہے کہ جس میں کوئی آلٹرنیٹ ڈبل بانڈ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مالیکولر آربیٹل تھیوری اس کا جواب دیتی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ مالیکولر آربیٹل تھیوری اور بنزین کا اسٹرکچر۔ تھیوری کہتی ہے کہ بنزین کے 6 کاربن ایٹمز جو ہیں وہ 6 کے 6 جو ہیں تو وہ sp2 ہائبرڈائزڈ ہیں، لہذا ہر کاربن پر ایک ان ہائبرڈائزڈ 2pz آربیٹل موجود ہے، 2pz، تو سب میں sp2 ہائبرڈائزیشن ہے۔ اب بانڈنگ کیسے ہوتی ہے تو چلیے میں پہلے آپ کو دکھا دوں، بعد میں ادھر آ جائیں گے ہم۔
ये है एक एस, किसका है? कार्बन का। कार्बन का दूसरे शेल का एस है ये एक, और फिर कार्बन के दूसरे शेल ही से 2p ऑर्बिटल, न्यूक्लियस यहाँ पर है, इधर न्यूक्लियस इधर है। ये एक ही एटम के 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 2p, दोनों मिक्स हुए और इस तरह हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। ये छोटा लोब है और ये बड़ा है। मतलब इसका क्या है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अब एटॉमिक नहीं रहा। दूसरा न्यूक्लियस इधर कहीं है, कोई एटम का, किसी एटम का, हाइड्रोजन का या कार्बन का, उसके साथ ये बॉन्डिंग हो चुकी है। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जो कि 120 के एंगल पे होंगे, बिल्कुल एक प्लेन में। ठीक है, जैसे कि एक पंखा जो होता है तो उसके जो 3 पैडल्स हैं एक प्लेन में, ये बिल्कुल उसी तरह है। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास sp2 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 और ये फिर वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। तो ये बेंजीन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिएगा, ये एक कार्बन एटम है और उसके ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। अब जरा दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन अटैच कर लें इसके साथ। ये पहला कार्बन, पहले कार्बन के साथ ये दूसरा जो कार्बन है वो अटैच हो गया है और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना। ये sp2 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन ने, जो sp2 है ये वाला, इस कार्बन का ये sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके बनाता है sp2s सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन का ये जो sp2 है तो वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके तो sp2s सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ये जो sp2 हाइब्रिड है, ये और ये आगे इस तरह बॉन्डिंग होती जाएगी। एक और कार्बन आया, ओवरलैप हो गई और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, sp2 सिग्मा बॉन्ड, फिर ये बना sp2s सिग्मा बॉन्ड। एक और कार्बन आ जाता है तो इस तरह ये कितने कार्बन हो गए? ये है 1 2 3 और ये चौथा है। ये बॉन्ड भी उसी तरह बन गया, sp2 सिग्मा बॉन्ड और फिर sp2s सिग्मा बॉन्ड। इस तरह पांचवा कार्बन आ गया, फिर वहां पर भी sp2 ओवरलैप हो गई और sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके तो sp2s सिग्मा बॉन्ड बना रहता है। आखिरी कार्बन एटम भी इसी तरह अटैच हो गया है और ये आप देख रहे हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड। फिर इस कार्बन का भी यहाँ पर भी sp2 है, फिर आगे भी sp2 सिग्मा बॉन्ड, फिर यह बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी sp2 सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह ये, तो ये बेंजीन का जो रिंग है वो बन गया है सिग्मा बॉन्ड्स का। हाँ, बेंजीन के हर कार्बन एटम का जो sp2 है तो उसने हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके तो ये sp2s सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं। तो कितने बॉन्ड हो गए बेंजीन में? ये sp2 बॉन्ड जो हैं ये 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह sp2s सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? ये भी है 1, फिर 2, इस तरह 3 4 5 और 6। सो बेंजीन में 6 बॉन्ड जो हैं वो sp2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो कार्बन के साथ बॉन्ड्स हैं। और 6 बॉन्ड जो हैं तो वो sp2s सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ sp2 और s के ओवरलैप से ये बने हैं। अब जो पिछले स्लाइड पे आपने देखा था, थ्योरी यही थी कि हर कार्बन एटम जो है बेंजीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और thus each carbon atom in benzene has 3 sp2 hybridized orbitals and 1 unhybridized p orbital। अब बॉन्डिंग कैसे होती है? 2 sp2 hybridized orbitals of each carbon atom form sigma bond with its carbon neighbor। जो इसका करीबी हमसाया कार्बन है उसके साथ हेड ऑन ओवरलैप करके तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह एक जो बॉन्ड है 1 sp2 hybridized orbital of each carbon atom, हर एक कार्बन एटम का एक sp2 यानी एक sp2 तो दूसरे कार्बन के साथ और
साइड वाले दूसरे यानी 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और एक जो sp2 है तो वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है। इसी तरह 6 जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जरा इसको देखें कि जो 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कुछ इस अंदाज से मौजूद हैं। जरा देखिएगा स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर तो वो ऐसे लगते हैं। जरा देखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसका भी हाइड्रोजन के साथ, और ये जो आप देख रहे हैं तो ये वो 2pz है जो कि अनहाइब्रिडाइज है। इस कार्बन का भी इसी तरह 2pz मौजूद है, ये भी 2pz है। आप इसे 2py कहेंगे तो फिर वो भी 2py होगा, ये भी 2py होगा। ये तीनों डीजेनरेट होते हैं, मतलब 2px 2py 2pz, तो उनमें से 2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। तो हर एक कार्बन पे 6 कार्बन है, तो हर एक पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जनाब ये यहाँ पे ओवरलैप कर लेता है, तो अगर इधर ओवरलैप करता है तो आगे क्यों नहीं करता, उसके साथ फिर क्या मसला है? तो यहाँ पे भी ओवरलैप होती है और इसके साथ भी ओवरलैप होती है, फिर ये इधर भी ओवरलैप होती है, यहाँ पर भी ये इस तरह, यानी इस जो सिग्मा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर यानी बेंजीन के प्लेन के ऊपर ये क्लाउड हरकत करेगा। ये क्लाउड इधर भी है, ठीक है जी। ये 2 अलग अलग नहीं है, बल्कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरह हरकत करते हैं। अब जरा इस रिंग को देखें, ये हकीकी बेंजीन है, रियल बेंजीन जो है, तो वो ये है, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये ऊपर पाई क्लाउड, और ये पाई क्लाउड, और ये पाई क्लाउड बाउंड है बिकॉज ये कार्बन की वजह से इधर से ये बाउंड है। लेकिन हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसको अलहदा लिख लेते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी उधर ज्यादा होती है। कार्बन जो पाई क्लाउड है इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है, तो क्यों हम इसको इस तरह टेढ़ा करके ये बना दें या फिर इसको टेढ़ा करके इधर ले जाएं। टॉप पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉटम पर तो बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तमाम कार्बन एटमों के ऊपर ऑल द टाइम हरकत कर रहे होते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। दोबारा सुनिएगा कि बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑल द टाइम 6 के 6 कार्बन एटम्स पर टॉप पर भी मुसलसल हरकत में हैं और बॉटम पर भी, गोया जैसा कि गाड़ी के 2 टायर हों, ऊपर नीचे रख ले तो दरमियान में बेंजीन रिंग, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था, और नेक्स्ट टाइम हम बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे।